students, do you have a period of music in your class? I think you have. The music teacher tries to make you best musician or singer. Like that, a donkey named Gupu also wants to become musician. So children, today we are going to learn the story The Mumbai Musicians from class 2nd English NCERT. This story is about a donkey named Gupu. Gupu loves music and wants to become a musician. When he became old and could not able to carry the load, he decided to go to Mumbai to become musician. On the way, he met a dog, a cat and a cock. They all joined him. They all wanted to become musician. On their way to Mumbai, they all became tired and hungry. They saw a house. They all started singing to tell the people in the house that they are singers. People got scared of their voices and ran away. Finally, they all ate food calmly. So, students, let us see the story The Mumbai Musicians from class 2nd English NCERT. Once upon a time, there lived a donkey named Gupu. He had worked for many years in the house of a farmer. He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. He was now very tired and old. एक बार क्या हुआ, एक डोंकी रहता था जिसका नाम है गुपू. वो बहुत सालों से एक फार्मर के घर में काम करता था और वहाँ पे वो क्या काम करता था, वो हेवी सैक्स कॉर्न की जो हेवी बोरियां होती हैं वो उठाता था, उनको लोड करता था और शुगर केन की भी बोरियां, और उनको फार्म से फैक्ट्री तक पहुंचाता था. बट दिन ब दिन वो बहुत ही टायर्ड हो गया, थक गया और ओल्ड होने लग गया. द फार्मर सेड टू गुपू, "You are a good donkey. Take this sack of corn and go and see the world before you become too old." Gupu smiled and said goodbye. He set off towards the city of Mumbai. अब जब फार्मर ने गुप्पू को कहा कि तुम बहुत ही अच्छे डोंकी हो, तुम एक कॉर्न की बोरी लो और जाओ पूरी दुनिया देखो, तुम्हारे बूढ़े होने से पहले तुम ये दुनिया देख लो. फार्मर की बात सुन के गुप्पू स्माइल करने लगा और उसने फार्मर को बाय कह दिया. फिर उसके बाद वो मुंबई के लिए निकल पड़ा. I am good at music. I will go to a Mumbai and be a musician there. अब वो कहने लगा कि मैं म्यूजिक में बहुत अच्छा हूँ और मुझे मुंबई जाना चाहिए जहाँ पे मैं म्यूजिशियन बन सकता हूँ. इस तरह से उसने सोचा डोंकी ने, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया. On the way he met a dog. अब जैसे वो मुंबई के लिए आगे बढ़ा, उसको वहाँ पे कौन मिला, एक डॉग मिला. Where are you going? asked Dupu. डुपू ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? I am going to be a musician. Would you like to come to? asked गुपू. गुपू ने कहा कि मैं मुंबई में म्यूजिशियन बनने जा रहा हूँ, क्या तुम भी आना चाह रहे हो? Yes, I would, replied डुपू. डुपू ने कहा, हाँ मुझे भी आना है. Off went the two friends on the dusty road to Mumbai. अब ये दोनों फ्रेंड्स मुंबई के लिए निकल पड़े. They saw a ball of fur in the middle of the road. अब उन्होंने बीच में ही रास्ते के क्या देखा, एक बॉल टाइप, फर की बॉल टाइप देखा. Who are you? they asked. उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? I am Furry the cat, said the cat. कैट ने कहा कि मैं कैट हूँ और मेरा नाम फरी है. Would you like to come with us to become a musician? asked Gupu and Dupu together. गुप्पू और डुपू ने उससे पूछा, क्या तुम भी हमारी तरह म्यूजिशियन बनना चाहती हो? क्या तुम्हें हमारे साथ आना पसंद होगा? हम लोग जो है कहाँ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, और क्या बनने के लिए जा रहे हैं, म्यूजिशियन बनने के लिए जा रहे हैं. ओह, I would love to come along, replied Furry. So off went the three together to become Mumbai musicians. फरी ने कहा कि हाँ मुझे भी आना है, तो इस तरह से तीनों निकल पड़े. कहाँ, मुंबई के लिए. Soon they met Kaku, the cock.
I love music and wish to join your band. अब कॉक ने भी कहा कि मुझे भी म्यूजिक बहुत पसंद है और मैं तुम्हारा बैंड ज्वाइन करना चाहता हूँ. They all reach a house with a light. अब ये चारों कहाँ पहुँच गए? एक घर के पास पहुँच गए जिस घर में बहुत सारी लाइट जल रही थी. They were tired and hungry. ये लोग बहुत थक चुके थे और इनको भूख भी लगी हुई थी. They peeped in through the window and saw a table with delicious food. They decided to sing to let the people inside know that they were musicians. अब जब उन्होंने झांक के देखा विंडो से तो उनको अंदर देखा कि एक टेबल पे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा खाना परोसा हुआ है. और अब इन चारों ने डिसाइड किया कि हम लोग गाना गाएंगे जिससे इस घर के अंदर के लोग जान जाएंगे कि हम कितने अच्छे म्यूजिशियंस हैं. अब ये सोच के इन चारों ने क्या किया? सॉन्ग गाना शुरू कर दिया. They sang. The people inside thought that ghosts had come to scare them. They ran away as fast as they could. अब जैसे इन्होंने सॉन्ग्स सिंगिंग करना शुरू किया, घर के अंदर के लोगों ने सोचा कि कोई घोस्ट आए हुए. घोस्ट कौन होते? भूत. भूतों जैसी आवाज इनको सुनाई दी और ये लोग डर गए और इतने फास्ट वो वहां से भागने लगे. Gupu Dupu and Furry went into the house and ate the food till they could eat no more. अब गुपू डुपू फरी सब उस हाउस के अंदर गए और वहाँ पे जो खाना था उसको खाने लगे. खाते गए जब तक उनका पेट एकदम फुल ना हो जाए. नाउ न्यू वर्ड्स: टायर्ड, म्यूजिशियन, पेप, डिलीशियस, घोस्ट, स्केयर. तो टायर्ड का मीनिंग है इन नीड ऑफ स्लीप और रेस्ट. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: आई एम टायर्ड ऑफ स्टडिंग. शी इज टायर्ड बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग. म्यूजिशियन का मीनिंग है अ पर्सन हु प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: ही इज अ वेल नोन म्यूजिशियन. अ म्यूजिशियन विल बी परफॉर्मिंग ऑन आवर एनुअल स्कूल डे. थर्ड वर्ड इज पिप. लुक क्विकली एट समथिंग. एग्जाम्पल सेंटेंस: peeped into the door to see who has come. My grandfather peeped out of the door. तो peep means क्या? Look quickly at something. Next word is delicious. Delicious means tasty. Example sentences are: my sister baked a very delicious cake. My mother cooked delicious food. Next word is ghost. Dead person which is believed to appear. Example sentences are: ghosts are only our imagination. My friend always shares ghost stories with me. Next word is scare. Scare means fear. Example sentences are: he gave me a scare. The cat scares me terribly. Complete this work in your English copy. Now next, question answer. Reading is fun. Why did the farmer tell Gupu to see the world? फार्मर ने गुपू को क्यों ऐसे बोला कि जाओ और पूरी दुनिया देख लो? Answer is: the farmer tells Gupu to see the world as he was now very tired and old. फार्मर ने गुपू को इसलिए बोला पूरी दुनिया देखो क्योंकि वो बहुत थक चुका था और दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज: व्हाई डिड गुपू डुपू एंड फरी वांट टू गो टू मुंबई? गुपू डुपू एंड फरी क्यों मुंबई जाना चाह रहे थे? आंसर इज: गुपू डुपू एंड फरी वांटेड टू गो टू मुंबई टू बी म्यूजिशियंस. उनको म्यूजिशियन बनना था इसलिए वो मुंबई जाना चाह रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज: व्हाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे? जो उस हाउस के अंदर लोग थे वो क्यों भागने लगे? आंसर इज: पीपल इन द हाउस रैन अवे एज दे थॉट घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम. अब उस घर के लोग इसलिए भागने लगे कि उनको लगा कि बाहर भूत आए हुए उनको डराने के लिए. नाउ लेट अस टॉक. इफ यू वर टू जॉइन द एनिमल बैंड, व्हिच एनिमल would you want to be? Create the sound of that animal. Get together with your friends as a group. Create the sound of the animal each one of you wants to be.
अगर आपको किसी एनिमल का बैंड ज्वाइन करना है तो आप कौन से एनिमल बनना चाहते हो, तो उसकी साउंड निकाल के दिखाइए। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। द डोंकी सॉ अ बॉल ऑफ फर एंड इट वाज अ कैट। इफ यू वर टू सी अ बिग बॉल ऑफ फर देन व्हाट वुड यू डू। तो ये आंसर आपको अपने मन से लिखने हैं। नाउ लेट अस सॉर्ट आउट दीज वर्ड्स। अब इनको कुछ वर्ड्स यहाँ पे बास्केट में दिए गए हैं, उनको सॉर्ट करना है। पिक द वर्ड्स फ्रॉम द बैग्स एंड पुट देम ऑन द राइट शेल्फ। One has been done for you. Say the words aloud. अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 बास्केट्स में अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं। लेग, पिग, नेस्ट, ट्री, स्माइल, सीड, फिश, डाइस, बेल, हिल, स्ट्रीट, लाइन, डीप, काइट, लिप, मिल, वेल। अब एक यहाँ पे एग्जाम्पल करके दिखाया है। तो शॉर्ट ई वर्ड्स, तो जहाँ जहाँ ई आ रहा है लेटर तो वो आपको लिखना है। लेग, वेल, बेल। और जहाँ पे आई वर्ड्स आ रहे, आई लेटर वाले वर्ड्स आए हैं जैसे पिग, लिप, हिल, वो सेकंड शेल्फ में लिखना है। लॉन्ग ई वर्ड्स वाले वर्ड्स आपको कहाँ लिखने हैं, थर्ड शेल्फ में, जैसे डीप, नेस्ट, ट्री, सीड, मील, स्ट्रीट। एंड लॉन्ग आई वर्ड्स वाले नेक्स्ट वाले शेल्फ में लिखने हैं, जैसे स्माइल, फिश, काइट, डाइस, लाइन। So students, you have to complete this in your English copy. Now next, do you play any musical instrument? Yes, I play. अगर आपने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया है तो आप यहाँ पे लिखोगे yes, I play. If no, which instrument do you want to learn? I would. तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है कि अगर आपने अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले किया है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आप सीखना चाहते हो। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करना सीखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। जैसे आई प्लेड गिटार, तो आपने अगर गिटार सीखा है, और अगर नहीं सीखा है तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहते हो। जैसे आई वुड लाइक टू लर्न गिटार। नाउ एड द वर्ड ऑफ द अपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंसेस। अब यहाँ पे अपोजिट जेंडर आपको लिखना है। अंजुज मदर, मदर मीन्स मम्मी, तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, मदर का अपोजिट हो जाएगा फादर। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड फादर केम टू स्कूल। माय अंकल, अब अंकल का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, आंट। My uncle and aunt came to visit us on Monday. Now next is the lion. Lion का opposite gender क्या हो जाएगा, lioness. The lion and lioness look lovingly at their cub. The king. King का opposite gender क्या है, queen. The king and queen sat on beautiful thrones. The man is running. Man का opposite gender क्या है, woman. The man is running and the woman is walking. My grandfather, grandfather का opposite gender क्या है, grandmother. My grandfather and grandmother went to the market. Now write any 9 words from the given list in the boxes. Put only one word in one box. तो ये फन एक्टिविटी आपको करनी है। Now next, in what way are these musical instruments different from each other? Put them into 3 groups based on how they are played. अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे पेज नंबर 136 पे, आप अपने बुक में भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो। तो इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे जिनको हम फिंगर्स का यूज़ करके बजाते हैं, और कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो स्ट्रिंग्स वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हम ब्लो करते हैं। तो उस हिसाब से आपको दिए गए सर्कल में इनके नेम आपको लिखने हैं। तो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू प्ले विद फिंगर्स आर तबला, ढोलक, डफली। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स गिटार, वायलिन, सितार। इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू ब्लो इनटू फ्लूट, शहनाई, इकतारा। तो जो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं उनको ऑब्जर्व करना है और सोच समझकर कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फिंगर्स से हम बजाते हैं,
कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें स्ट्रिंग्स लगी हुई होती हैं और कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिनमें हम ब्लो करते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। Now get 6 to 10 bowls of the same size and shape and pour water into the bowls. Keep the water at different levels. Use two pencils and strike the rim of the bowls to make musical sounds. तो पेज नंबर 138 पे जल तरंग की एक्टिविटी दी हुई है, वो आपको करनी है और मुझे उसकी वीडियो ज़रूर भेजना। Now the word जल तरंग is made up of two words. जल means water and tarang means music. Now make new words by joining two words. One has been done for you. तो ये एक्टिविटी हमने फन विद KVS चैनल पे देखी है। ये एक्टिविटी किशले वशिष्ठ ने प्रेजेंट की थी। तो जैसे यहाँ पे दिया न्यूज़ प्लस पेपर न्यूज़पेपर, स्कूल प्लस बैग स्कूल बैग, टूथ प्लस पेस्ट टूथपेस्ट, नेक प्लस लेस नेकलेस, सम प्लस वन समवन, बाथ प्लस रूम बाथरूम, टाइम प्लस टेबल टाइम टेबल, फूड प्लस बॉल फुटबॉल, कार प्लस पेट कारपेट। तो इस तरह से टू वर्ड्स को ज्वाइन करके हमने न्यू वर्ड बनाया है। तो आप ज़रूर वो वीडियो देखिए किशले वशिष्ठ का। इस पे आपको गुड हैंड राइटिंग में ये कंप्लीट करना है। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई होप you understand this lesson very well. Okay students, bye bye, take care, maintain hygiene and wash your hands regularly. Bye bye. Thanks for watching.